guys, I want to tell you I'm so excited. At the moment, I'm standing at the Paddington and I'm going in a very special place. Hello, my sweet followers and everyone. I don't know, for some reason my voice has been not recorded, but yeah, I can tell you what I was saying. Actually, I'm here standing at the Southall station and waiting for the Elizabeth line and going to Ilford. You know what? I want to introduce somebody here with me because he's a celebrity hairstylist in Karachi, Pakistan. Even his father was also a celebrity hairstylist. I will not tell you the name right now. I will just surprise you. So he's my childhood neighbor. His father was my mother hairstylist and his big brother is a celebrity hairstylist, a very famous hairstylist in Karachi, Pakistan. So he's here for good, okay? So it's a talent here in London. So we're gonna chit chat in some kind of a business thinking and then our own thinking. And I'm going to his house at Ilford. So be with me. I'm gonna record all the chit chat what we have done. Yeah. मैं राजू कहती हूँ क्योंकि we know each other for very long time. So Ayaz, he's Ayaz who is a celebrity hairstylist or at Hair in London, and his brother Ujais Romerio. और this, I mean, I'm so excited कि Ayaz के father से ही मेरी mother ने hair cutting करवाई है. He was very famous. I mean, that time कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था जी कि बहुत सारे हर कोई उठ के जी स्टार बन गया, हर कोई उठ के फिल्म स्टार के. That was one man show होता था उस वक्त. Nadeem Beg was the only star in like all global Pakistan, and he used to come to Wahid Murad used to come. Oh my God! And I saw from my own eyes because we were very young basically. So but I saw from own eyes Wahid Murad and Nadeem ये सारे. अब तो हर कोई भाई hairstylist बन गया, हर कोई जी barber उठ के बन गया. When they get up from the back and they are barber, but these people, this is in the blood. The styling is in the blood. So Ayaz, yes. How do you feel? First of all, I want to ask, how do you actually feel to come to London? Because obviously you traveled before, but not in the Europe side. But UK is actually also different from the UK. तो तुम्हें कैसा लगा? तुम कितने दिन हुए यहाँ पर आए? मुझे तो अभी सिर्फ 15 days हुए हैं. Only 15 days आए हैं और लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा. क्या difference है यार? What do you feel? I mean, I'm not saying comparing to Pakistan, comparing to anywhere in the world. ये है कि बहुत अच्छी जगह है, साफ है, थोड़ा सा लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे चीज़ें और लोगों को पता है, लोग अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ें. You mean to say the system is very nice, they follow time and you feel secure, you know. Obviously Ayaz, अब तुम यहाँ पर आ गए हो क्योंकि तुम्हारे जो हाथ है उसमें तो है गोल्ड माइंस, you know. तो मतलब कैसे यहाँ पे तुम्हारा आना कैसे हुआ, और अगर आना हो ही गया है तो फिर ये बताओ कि तुमने यहाँ पे करना क्या है. I mean, are you still going to be in your own field? बस आ गया यहाँ पे. आना नहीं था लेकिन बस आ गया. कुछ इश्यूज़ थे, कुछ चीज़ें थी कि बंदे को मूव होना पड़ता है. लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या हम इसी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि यही काम मैंने किया सारी लाइफ में, तो इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ हैं और सारी चीज़ें, तो यहीं पे कुछ हम इंशाल्लाह करते हैं. अब टीना मेरे साथ है तो हम रीयूनियन हुए दोबारा से और बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे इंशाल्लाह. Guys, this is like such exciting because मैंने इसके बड़े भाई से इजाज़ रोमेरियो, जो कि इतना बड़ा नाम है, उससे मैंने क्लासेस ली थी. When I become a hair stylist, तो मैं जब बार्बरिंग में आ रही थी तो इजाज़ ने मुझे 2-3 दिन की क्लासेस दी थी. एंड ही इज़ माई उस्ताद ऑल्सो. एंड आई एम सो एक्साइटेड कि इतना अच्छा, आई मीन इतना सीनियर, इतना वो आ गया. तो प्रॉबली वी गोना डू समथिंग टुगेदर बिकॉज आई एम इनटू नॉट बार्बरिंग, आई एम इनटू हेयर ड्रेसिंग. और ये मेरी फील्ड भी समझो कि इज़ मोर देन माई फैमिली. तो राज, मुझे बताओ कि तुमने बीइंग विद एजाज एट रोमेरियो और बीइंग इन कराची, अभी तो तुम आए हो, तो कौन कौन से ऐसे बिग सेलिब्रिटीज ऑफ पाकिस्तान है जिनको तुमने ग्रूम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फहद मुस्तफ़ा को किया ग्रूम. फहद मुस्तफ़ा इज अ बिग नेम ना? बिग नेम. उसके बाद बिलाल अब्बास की भी मैंने बहुत ग्रूम की है. फाइज खान, असलम शेख, ज़ेबा शहनाज, द बिग सेलिब्रिटी. या शी इज सो डार्लिंग पर्सन. या तो सो मेनी नेम्स, इतना नाम है कि मैं मतलब ऑब्वियसली आपको पता तो है नहीं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आते ही सारे सेलिब्रिटीज हैं. तो आर यू इनटू द फीमेल आल्सो? यस, आई हैव एक्सपीरियंस बोथ यूनिसेक्स, लाइक वुमेन और मैन, दोनों का मैं एक्सपर्ट हूँ. ओके, या दैट्स
ओके यार, अगर तुम यहाँ पे तुम्हें चांस मिले लंदन में खोलने का हेयर ड्रेसिंग सैलून जो कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त होगा उन लोगों के लिए, तो तुम कौन से एरिया में तुम समझते हो कि तुम चूज़ करोगे? मैं देखूंगा यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटीज़ जहाँ पे हों ज़्यादा, इंडियन और ये जो दूसरे हैं एशियन, तो मेरे ख्याल है मैं उनकी खिदमत करूँ ज़्यादा अच्छा उनका काम हो, तो जहाँ पे ये सब लोग हों तो इनके साथ ज़्यादा अच्छा। और बहुत जहाँ आपकी खुद की पहचान हो। हाँ, जहाँ हमारी खुद की पहचान है। Yeah. So are you already missing Pakistan? Yes or no? Yes. Yes. क्या चीज़ पाकिस्तान की तुम अभी इस 15 डेज में मिस कर रहे हो, ये बताओ। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, ट्रैफिक, शोर, खड्डे, कचरा, नेगेटिविटी, सब मिस करो। शोर का so हम यहाँ आ चुके हैं इल्फत में राजू अयास की तरह। यार राजू तो यहाँ पर तो बादशाह की तरह रह रहा है। शुक्र है। तो 15 दिन हो यार, हाँ बड़े लोग तो बड़े ही होते ना। ओके राजू अयास, I want to ask one thing because as you are very new here and you are from very well of business, very well of family, जैसे कुछ होते ना स्ट्रगलिंग के लिए आते हैं, तो आप तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग करने नहीं आए हो, तो कुछ ना इन्वेस्ट करोगे या सोचोगे। जैसे आपके फादर रफीक अंकल क्या नाम था? रफीक। Mr. Rafiq was very famous during my parents' period, and then your big brother Ijaz to Mario, who has still got a big name and he's doing very well. और आप उनके भाई हो जो यहाँ पर आए हो अभी, इतना सारा टैलेंट लेके, इतना सारा सेलिब्रिटी को करके, इतने आपने लर्न किया। एंड आई नो यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन गोइंग अदर प्लेसेस आल्सो। आपने ये नहीं किया कि जी आपके फादर का बिजनेस, तो आप सिर्फ पाकिस्तान में रहे हो, आपने डिफरेंट जगह पे जाके कंटिन्यूसली करते हुए। तो मैं आपसे आपके व्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा मेरी अहमियत रखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि हाउ यू कंपेयर द बिजनेस ऑफ बार्बरिंग एंड हेयर ड्रेसिंग कंपेयर टू पाकिस्तान एंड द यूके? दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं। अब पाकिस्तान में भी काफ़ी मॉडर्न हेयर स्टाइल्स और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। यूके में हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, लेकिन कोई इतना चैलेंजिंग काम नहीं है यहाँ पे भी। अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है, अच्छा करें तो अच्छा अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ पे अभी तो मैं आया हूँ, जस्ट अराइव्ड। इंशाल्लाह यहाँ पे हम अपना एक अच्छा कोई बिजनेस करते हैं, और ये तो हमारे ब्लड में है सैलून और ये स्टाइलिंग। और ये जब ब्लड में है तो हमें कोई इतना वो सीखने का वो नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे हम करेंगे और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आएंगी इंशाल्लाह। One more thing I want to ask, I mean, compare, ऐसा आपने बताया कि you are also here, कि फ्यूचर में आपका इरादा है कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग खोलो और नए जो लोग हैं अपने स्पेशली देसी उनको टैलेंट बताओ, क्योंकि वहाँ भी आप ट्रेनिंग पे रहे हो, ठीक है? तो अभी आपका ये इसमें कितना ज्यादा कितनी टाइम लगेगा आपका? हाँ, इसमें हमारा थोड़ा सा मार्केट देखनी है, और मैं चाहता हूँ स्पेशली अपने पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां जो अपने लिए कोई अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ वो स्किल्ड हो जाएं, अपनी मेहनत से काम करें, सीखें। इस काम में बहुत स्कोप है, अपना पूरा घर चला सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेन हो सकते हैं वो लोग। और मैं ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर इनको सिखाऊं, जो टैलेंट मेरे पास है मैं आगे दुनिया को दूं, ताकि वो उससे अपने काम करें, हमारे बच्चे भी टैलेंटेड हो जाएं। Okay, Raju, because like your family and you people are very, very long away into this business. I mean, say, मेरे ख्याल से जो पहले का वक्त था, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी मेरी एज कितनी है, ओके? जो पहले का वक्त था, उस वक्त मैंने ये सुना था कि हेयर ड्रेसर को नाई नाई बोलते हाँ, थे, you know? So what do you think कि कितना डिफरेंस अब आया है और कितनी जल्दी ये डिफरेंस आया है, और ये कितना अच्छा बिजनेस है कि ये क्या हम इसको किसी व्हाइट कॉलर जॉब से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, तुम्हारी बात जो है वो सही है। जब हम इस फील्ड में आए, जब मैं यंग था और जब मैं इस फील्ड में आया, तो काफ़ी हमें ये सुनने को मिलता था, लोग बस ऐसे ही कहते थे यार ये नाई है, ये धोबी है, ये मरासी है। वहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब लोगों ने हमारे स्किल्स देखे, हमारी हमारी आगे हम जब बढ़े और तरक्की की, और पूरे कराची में इवन कि आप नाम लो अयाज रोमेरो, रोमेरो सैलून, तो लोग कहते हैं हाँ यार वो मेरा दोस्त है। मतलब इतना हम फेमस हो गए उसके बाद अपने इस फील्ड में, कि लोग फख्र करते थे कि यार ये हमारा दोस्त है, हम इनको जानते हैं। So you ठीक है means ना? the new हाँ, न्यू generation जनरेशन is जो है better इज than बेटर देन our ओल्ड old ओल्ड generation. जनरेशन। Yeah, but still अभी आपने मुझे बताया था कि अभी भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ, वो करते हैं, अब करने वाले तो करते हाँ, हैं, और 10 जो बातें औरतें करें। लेडीज इसमें हैं उनके लिए भी गलत हाँ, बात है। औरतों को लिए तो बहुत चैलेंजिंग है पाकिस्तान में। Exactly. बेचारी पार्लर खोलती हैं, अपनी मेहनत से काम करती हैं, बहुत अपने काम में पैशनेट है, लेकिन उनको लोग इस तरह डिग्रेड करते हैं कि यार पार्लर वाली है तो बस
दो नंबर तो अब ये ये वो। यहाँ पे थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू हाँ पाकिस्तान, ये डेफिनेटली, हम बेटर तो अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, तो यहाँ तो लोग कहते हैं यार हम सीख जाएं किसी तरह ये काम, और हम ये काम करें। अदरवाइज के ये आप किसी रेस्टोरेंट में मॉप लगाओ, झाड़ू लगाओ, उससे तो लाख दर्जे बेहतर है कि भाई आप स्किल्स पकड़ो, है। अच्छे एग्जैक्टली। पैसे कमाओ, बस। Hello, Anita. Mrs. Raju, Mrs. Ayaz, how are you, darling? अनीता को भी मैं बहुत पुराना जानती हूँ, वी हैव अ वेरी नाइस मेमोरी टुगेदर। सो अनीता, मिसेस अयास, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि बीइंग अ डॉटर इन लॉ ऑफ अ हेयरड्रेसिंग फैमिली इन पाकिस्तान, बिकॉज आपकी तो काफी अरसा हुआ माशाल्लाह आप दोनों साथ हो, तो हाउ इज इट फील लाइक टू बीइंग अ हेयरड्रेसर guy, I mean, married with a hairdressing husband and having a family, all the people are hairdresser. हाँ, ठीक ये तो मैं तुम जानती हो कि मेरा हमारा फैमिली बिजनेस है मेरे इन लॉज के जरिए। लेडीज में मैं वर्क करती थी, जेंट्स में मेरे हस्बैंड वर्क करते थे, तो बोथ टुगेदर हम लोगों ने काफी इस फील्ड को एंजॉय भी किया और बहुत इसमें स्कोप है। इस फील्ड में नई नए तरीके से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं लोगों को और बहुत ज्यादा समझो एंजॉय भी किया है। एक मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। तो ये ज्यादातर क्या, आई मीन, लेट वर्क्स होता है, तुम्हें फील हुआ इनिशियली मैरिज में के बाद देर तक नहीं, काम मुझे होता कभी फील नहीं हुआ क्योंकि लाइकली हमने फैमिली की तरह अपने सलून्स को ट्रीट किया। हम लोग ने अपने है? अच्छा, साथ साथ ही तुम जी, लोग हमारे करते हो। किड्स भी फैमिली ट्रीट। So, sorry, you were into this business like in hairdressing before your marriage or after the marriage with Ayaz? आफ्टर दिस मैरिज। अच्छा, तो यू गेट या इम्प्रेस इन। और इसका कोई हेयरड्रेसिंग का कोई मैरिज से पहले कोई इतना ताल्लुक नहीं ये था मेरा या? कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे हस्बैंड को देखते हुए और लोगों को मुझे एक्चुअली फैशन करने का बहुत Oh, शौक है। right, हम्म, okay, okay. या। So, Anita, I मैं also भी want. चाहती हूँ कि लेडीज आइंदा आने वाली जनरेशन में भी वो अपने आप को अपडेट रखें, यू नो। Exactly. And you are such a brave woman. I'm so impressed by you. You just came here in like so short time. Anita पहले आई and she is a British पाकिस्तानी माशाल्लाह, और फिर इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बुलाया है। बच्चों जाग जाओ, औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं। So my all followers, इधर तक मुझे बर्दाश्त किया और हमारा इंटरव्यू देखा, and मेरे चाहने वाले, मेरे सारे फ्रेंड्स, so the thing is that we are actually into business because पहले भी मैंने यहाँ पे खोला था कोरोना के बाद, बंद करके मैं वापस अपने प्यारे पाकिस्तान में चली गई थी। तो अभी राजू इधर आ गया है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू हैव अ बिजनेस शेक हैंड्स विद अस, और किसी को कुछ समझ आ रही है तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी और अयाज, जिसकी मैं सारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ डाल दूंगी। सो अदरवाइज मैं और राजू इसमें इन है और आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है। लेट्स बी अ पोस्ट हेयर ड्रेसर एट लंदन।